So we'll see this, what is actually a stack. So if you carefully see, stack is a class, it is a concrete class which is extending vector. So stack is a सब क्लास ऑफ वेक्टर. तो सारे जो भी मेथड्स वेक्टर के हैं, सारे मेथड्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, स्टैक में भी मिलेंगे. यू विल गेट ऑल द मेथड्स इनसाइड द स्टैक आल्सो. नाउ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक में कैसा डेटा रहेगा, डेटा विल बी देयर इनसाइड द स्टैक. नाउ स्टैक मेमोरी इज क्रिएटेड इन सच अ वे दैट elements will be added in an order called as last in first order. So you will add an element. Now let's say I have added elements. So this is a stack. So element, now let's say I am adding element 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. So in what order? I have added first 10, on top of 10 I have added 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Last in. Now what this last in first out means? Last in first out मतलब जो भी लास्ट में एलिमेंट ऐड किया था, so that will be the first element that will be taken out. तो अगर हम एलिमेंट्स ऐड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पुश. क्या बोलते हैं हम? पुश. Adding an element on top of a stack is called as push and removing the element is called as pop. क्या बोला जाता है? Removing the element. तो ये इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे होगा? सो लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो व्हाट वाज द लास्ट एलिमेंट इन इनसाइड द स्टैक विल बी द फर्स्ट वन टू टेक आउट. क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे लास्ट में कौन सा एंट्री है? 70. ये लास्ट में एंट्री हुआ और सबसे फर्स्ट कौन सा आउट होगा? 70. राइट. सो स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड. अभी ये क्या है? कंटेनर ही है. दिस इज काइंड ऑफ अ कंटेनर ओनली. This is a container. Yes. Now this stack can be implemented using linked list or it can be implemented using array also. तो अभी जो जावा ने stack class दी है, that is implemented using array. तो internally क्या use हो रहा है? Array. It is going to create an array. So I will just couple of things I will tell you. So what is stack? Stack is a concrete class which extends vector. Using stack we can store multiple values which can be of same type, which can be of different type. We can store duplicates, insertion order will be maintained. We can store any number of null values and stack is synchronized. How stack works? So stack uses a linear data structure. Stack uses growable array data structure just like vector. So stack मतलब इंटरनली क्या यूज कर रहे हो? स्टैक यूज कर रहे हैं. इंटरनली इट यूजेस वेक्टर. स्टैक इंटरनली क्या यूज कर रहा है? वेक्टर की सारी मेथड्स. एग्जैक्टली स्टैक इंटरनली मेंटेन्स array to store the elements. Once old array is full, it will create new array and everything as it is. Right? And stack follows LIFO. That is last in first out. What are the advantage? We can store multiple values. There is no shortage. Since it maintains array, elements are stored in sequential memory location, so retrieval of data is faster. Disadvantage of stack. There will be a lot of wastage of memory space. Stack is worst choice. Stack is worst choice if the element if the frequent operation is insertion or deletion. So what are the methods of stack are there? Methods of stack. So if you carefully see, there is one method called as push. So what push does? Inserts an element on top of stack. Then we have pop method. What pop method does? Removes an element from top of
top of a stack. Then we have another method. What is that? Peek method we have. So what peek method does? It returns the element from top of stack without deleting, without removing. क्या करता है? रिमूव नहीं करते एलिमेंट, बस स्टॉप पे क्या है उसका वैल्यू आपको मिल जाता है. Then we have size. As you know, what size does? It returns the size of a stack. Then we have is empty. Now there is an interview question in the data structure. Implement a stack of yourself, creating your own stack. That also you can do. You can work on this, how to create your own. It returns true or false. It returns true if the stack is empty, else false. अगर empty है तो रिटर्न करेगा true, otherwise it is going to return false. ठीक है, बहुत सिंपल है. इफ यू सी ब्राउजर हिस्ट्री कैसे मेंटेन होता है, ब्राउजर हिस्ट्री आपका सिमिलरली इट यूजेस स्टैक. क्या मेंटेन होता है यहाँ पर? स्टैक. ब्राउजर हिस्ट्री हो गया, बहुत सारी चीज़ें. देयर आर एन नंबर ऑफ यूज केसेस वेयर स्टैक इज यूज्ड. वन ऑफ द फेवरेट यूज केसेस आपका हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए. एनीवन नोज एनी अदर यूज ऑफ रियल टाइम यूज ऑफ स्टैक? हम यूज कर रहे हैं, जावा खुद यूज करता है. मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक हमने देखा था. मोबाइल का बैकग्राउंड एप्स, राइट? सो ऑन टॉप अभी आप क्या करते हो? इफ यू स्क्रॉल द एप्स, इफ यू सी दिस, right, this is also now स्टैक का एग्जांपल मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक हमने देखा था. जावा मेंटेन करता है क्या? मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक. व्हाट इज द फर्स्ट मेथड दैट इज एग्जीक्यूटेड इन जावा? राइट. तो जावा खुद एक स्टैक मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक. सबसे पहले इस स्टैक में एंट्री होता है किसकी? मेन मेथड की. किसकी एंट्री होती है? मेन मेथड की. एंड व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स? एनीवन नोस व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स? What are local variables? Variables which are created inside the method, blocks or constructor. Such variables are called as local variables. अभी let's say main method ने कॉल किया m1 method, तो main method के अंदर जो भी variables created होंगे that will be part of कहाँ पर रहेंगे? So अभी मैंने एक variable create किया मेन मेथड के अंदर, so that will be part of main. m1 मेथड के अंदर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया a, उसका वैल्यू है 20. m1 से कॉल किया मैंने m2, यहाँ पर भी एक वेरिएबल क्रिएट किया मैं 30. तो यहाँ पर तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं. सो मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक इज केप्ट टू मेंटेन द करंटली एग्जीक्यूटिंग मेथड. मतलब स्टैक का टैब टॉप देख के पता चलता है कि व्हाट इज द करंटली एग्जीक्यूटिंग मेथड. जैसे ही आपका m2 मेथड कंप्लीट होगा, दिस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक. जैसे ही आपका m2 खत्म होगा, कंट्रोल आएगा m1 के पास, m1 खत्म हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक. जैसे ही कंट्रोल वापस आएगा मेन मेथड एग्जीक्यूशन के बाद, दैट विल बी एंड ऑफ योर प्रोग्राम एंड देन स्टैक विल बी कंप्लीटली एम्प्टी. तो आपने एक एरर देखा होगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर. स्टैक ओवरफ्लो एरर आपने देखा होगा. स्टैक ओवरफ्लो. अभी लेट्स से मेन मेथड से आपने मेन मेथड कॉल करी, क्या होगा? मेन मेथड कॉल्स
main, फिर main calls main, and this will keep on continuing. एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा. It will say stack overflow. Overflow means your stack is now full. Right? ये एक one of the use case है जहाँ पर stack खुद यूज होता है. और हमारा दिमाग भी stack जैसे ही है. हमें कौन सी चीजें याद रहती है? Latest. What is latest added that you will remember? Right? What is the first thing that will be removed from your mind? That is latest thing only. Add कौन सा हुआ? Latest. Delete कौन सा हुआ? Latest. बाकी सारे elements तक आप जाते ही नहीं. Right? So we'll try to perform. What are the operations are there which are performed using stack? There are a lot of things. One of the use case I will give you. पहले तो stack देखते हैं कि कैसा हम implement कर सकते हैं. Stack is a predefined class which is present inside the order util package which extends vector class vector class. Now it has some set of constructors. It has a 0 parameters constructor and it represents a LIFO. It represents a last in first out a stack of objects. Pointer क्यों रहेगा इधर? पॉइंटर कॉन्सेप्ट ही नहीं जाऊँ मैं. वो एरे का यूज करके होता है ना, मेंटेन एरे यूज होता है वहां पर. सो इंटरनली इट इज यूजिंग वेक्टर मेथड. तो अब यहाँ पर देखो पुश मेथड इंटरनली क्या कर रहा है? ऐड एलिमेंट. ऐड एलिमेंट किसका मेथड है? वेक्टर का. और इंटरनली क्या कर रहा है वो वेक्टर? इट इज मेंटेनिंग एरे. ऐड एलिमेंट क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर एरे को असाइन कर रहा है एलिमेंट डेटा एंड एलिमेंट काउंट प्लस प्लस इक्वल टू ओबीजे. तो इंटरनली क्या कर रहा है वो? किसकी मेथड कॉल कर रहा है? वेक्टर की. नाउ सिंपली यहाँ पर पुश हो गया, जैसे पॉप हो गया. पॉप में क्या होगा? रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स जो भी फास्ट लेंथ -1. लेंथ -1 मतलब अभी जो लेंथ है साइज मिलेगा यहाँ पर आपको, उसका टॉप में कौन सा इंडेक्स होगा? -1. तो वही एलिमेंट डिलीट होगा. रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स ये किसकी मेथड है? वेक्टर की. और इंडेक्स माइनस माइनस यहाँ पर आपका एलिमेंट काउंट माइनस माइनस हो गया एंड दैट इज एलिमेंट डेटा एलिमेंट काउंट इक्वल टू नल टू लेट जीसी डू इट्स वर्क. तो एलिमेंट डिलीट होना मतलब क्या हो गया? उसको नल वैल्यू असाइन कर दिया. नाउ इफ यू सी पिक क्या करता है आपको? एलिमेंट एट इंडेक्स देगा लेंथ -1 टॉप पे जो रहेगा लेंथ -1. और यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है वो? एलिमेंट डेटा. कौन सा इंडेक्स? जो स्पेसिफाइड किया इंटरनली. एलिमेंट डेटा ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स. दैट्स इट. द नया मेथड क्या है? एम्प्टी मेथड. इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स. अगर साइज 0 है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर साइज 0 नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स. सर्च मेथड क्या करने वाला है? इट इज गोइंग टू सर्च इनसाइड द गिवन स्टैक. अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज सर्च इट इज गोइंग टू रिटर्न वैल्यू. सो -1 कब मिलेगा? इफ द एलिमेंट इज नॉट देयर. इट इज गोइंग टू रिटर्न -1 कब? एलिमेंट नहीं रहेगा तो. अगर एलिमेंट है तो, अगर इंडेक्स आपका जो भी वैल्यू दिया आई लास्ट इंडेक्स ऑफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 साइज माइनस आई, तो रिटर्न कौन सा होगा? एलिमेंट सेट वाला साइज माइनस उसका इंडेक्स मिलेगा, उसका कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है दैट वैल्यू विल गेट. अगर अदरवाइज आपको क्या मिलेगा? -1. सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट मेथड्स नहीं है. नाउ आई वांट टू मेंटेन अ स्टैक, न्यू स्टैक, और यहाँ पर हम मेथड्स ऐड करेंगे स्टैक डॉट पुश. Now these are the elements I have. What is the first element that will be added in the stack?
100, उसके ऑन टॉप ऑफ पे 199, ऑन टॉप ऑफ दैट 110, 1010 एंड 101. अब मुझे पता करना है कि इस स्टैक की साइज कितनी है. साइज ऑफ द स्टैक, कितने एलिमेंट्स है. स्टैक की साइज मतलब कितने सारे एलिमेंट्स हैं. सो वी हैव दिस मेथड स्टैक डॉट साइज. इट विल गिव द साइज ऑफ द स्टैक. साइज ऑफ द स्टैक इज 6. इट्स इट. अब मुझे इसमें से एलिमेंट्स रिमूव करना है. रिमूव कौन सा, स्पेसिफिक नहीं वाला, टॉप ऑफ. नाउ आई वांट टू नो हु इज ऑन टॉप ऑफ द स्टैक. रिमूव नहीं करना है मुझे, क्या करना है, बस चेक करना है कि हु इज ऑन टॉप ऑफ द स्टैक. तो मुझे देखना है पीक. पीक का मतलब क्या होता है, चेक हु इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. Top of the stack, who is on top of the stack, we have 101. We have 101. ठीक. अब मुझे एलिमेंट्स वन बाय वन डिलीट करना है. आई वांट टू डिलीट द एलिमेंट्स. एलिमेंट इज तो स्टैक डॉट पॉप. स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं. पॉप कितने बार, कितने एलिमेंट्स है, 6 है. 3 4 5 6 7. Now I will get six elements. I will get 6 elements, and at the last time what will happen? Last element के लिए क्या होगा? Empty stack exception, क्योंकि stack का empty हो गया. Your stack is empty. Simple. Elements कौन सा insert किया था आपने सबसे पहले? 100. लेकिन आपको कौन सा मिला जब रिमूव किया तब? 101, जो लेटेस्ट में ऐड किया था. 101 उसके बाद फिर 10 एंड सो ऑन. सिंपल. अब मुझे चेक करना है इस टाइम पर अगर आपका स्टैक एम्प्टी है ना. इज स्टैक एम्प्टी. स्टैक डॉट इज एम्प्टी. रिटर्न करेंगे बुलियन ट्रू और फॉल्स. अभी एम्प्टी है क्या सब डिलीट होने के बाद? यस. लेकिन ये लाइन प्रिंट होगा क्या? अरे एक्सेप्शन आएगा ना. व्हाट इज एक्सेप्शन? जिसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला है. Is stack empty? True. Is the stack empty? True. Simple. Now there is famous question on this. I will give you as an assignment. Assignment क्या है, इसका यूज करके क्या सॉल्व करना है आपको. So you will get a string as an input. Take this as assignment. String str. एक ऐसा स्ट्रिंग हो सकता है. दूसरा इनपुट क्या हो सकता है? सैंपल. नाउ इनपुट, दिस इज वन ऑफ द इनपुट. Is this parenthesis balance? Parenthesis balance. Parenthesis balance. So which one is balanced? This one will return true, and this is not.
So I have to say that whether this string contains a parenthesis balanced. For every opening, there should be a corresponding closing also happening. So how do you make sure that is parenthesis balanced? इसके लिए आप यूज कर सकते हो स्टैक, स्टैक ही यूज करना है. करेक्ट करेक्ट, वही लॉजिक यूज करना है. तो कोई बता सकता है मुझे, मैं आपको एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, दिस विल बी योर असाइनमेंट बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस नाउ. ASCII वाली क्यों चाहिए? डायरेक्टली कैरेक्टर्स सर्च कर सकते हो ना. ASCII वाली क्यों निकालना, एक एक कैरेक्टर निकाल सकते हो ना आप. दिस इज वैलिड राइट, दिस इज वैलिड, आउटपुट शुड बी वैलिड पैरेंथेसिस. वैलिड पैरेंथेसिस. तो यहाँ पर आप एक स्टैक मेंटेन कर सकते हो, स्टैक ऑफ कैरेक्टर. और यहाँ पर आपको एक फॉर लूप यूज करना है, फॉर लूप के अंदर एक स्विच यूज करना है, मतलब स्टैक यूज करना है. मतलब मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ कि स्टैक यूज करना है. यू कैन टेल मी हाउ डू वी डू दैट. ऑनलाइन एम आई ऑडिबल? ओके. Do we do this? मतलब ये बैलेंस, ये पैरेंथेसिस वैलिड है कि नहीं? इज इट अ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस? देख के तो पता चल रहा है इट इज अ बैलेंस्ड. तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आइटरेट करना है पूरी स्ट्रिंग पर, एक एक कैरेक्टर लिख के, और फॉर एवरी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस देयर शुड बी अ क्लोजिंग करस्पॉन्डिंग. आप मुझे बताओ ये इफ आई से इज दिस अ वैलिड? नो. तो आपको एक पैटर्न देखना है यहाँ पर. इफ यू सी हियर देयर इज अ ओपनिंग ब्रेसेस, फॉर एवरी ओपनिंग ब्रेसेस देयर शुड बी अ क्लोजिंग ब्रेसेस. तो क्या करना पड़ेगा आपको? फॉर लूप यूज करो एक, फॉर कैर सी एच, और आपको मिलेगा str.to char array. कैरेक्टर मिल गया आपको. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुश एलिमेंट्स. कब? इफ सी एच. तो क्या करना है आपको, आई विल टेल यू दैट. अगर आपका कैरेक्टर है केस लेवल, केस लेवल है आपको ओपनिंग क्लोजिंग, क्या करना है आपको, क्या पुश करना है वहां पर? स्टैक डॉट पुश. क्या पुश करोगे? ये नहीं चल रहा क्या? जावा 17 नहीं है क्या? ओके, देन वी डू ब्रेक. क्या कर रहा हूं मैं? For every opening braces, I am pushing n. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसमें बस क्लोजिंग ही रहेंगे, क्लोजिंग रहेंगे. फिर बाद में आपको क्या करना है?
Try this. This is one of the asked question in the interviews. They will ask you. This is one of the favorite question. पैरेंथेसिस बैलेंस करने के लिए अगर आपका जो भी पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है तो रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, या बोलना है कि इट इज अ वैलिड और इनवैलिड. मैं आधा लॉजिक तो लिख लिया, जस्ट 2-3 लाइन्स मोर. अभी आपने पहला इटरेशन में क्या किया, वैल्यूज इंसर्ट करे. व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, रिमूव. कौन से रिमूव करोगे आप? हाँ, फिर स्विच का यूज करके क्या करोगे आप? पहले तो पुश कर लिया आपने. पॉप में लास्ट का कंक्लूजन बता दे. अगर आपका स्टैक एम्प्टी है देन इट इज वैलिड. अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है देन इट इज इनवैलिड पैरेंथेसिस. अब बताओ. पॉप आपको पॉप करना है. अभी क्या करना है आपको? पॉप. और पॉप करने के बाद आपका स्टैक होना चाहिए एम्प्टी. अब मुझे बताओ क्या लॉजिक लिखूं मैं? एट द एंड अगर आपका पैरेंथेसिस वैलिड है, बैलेंस्ड है, तो योर स्टैक शुड बी एम्प्टी. अगर एम्प्टी नहीं है इट इज नॉट वैलिड. अभी आपको क्या करना है? पॉप करना है. लेकिन कौन सा पॉप करना है आपको? थोड़ा देखो स्टैक में क्या है अभी. ओपनिंग वाले तीनों हो गए. नहीं, स्टैक में क्लोजिंग वाले ना. फॉर एवरी ओपनिंग आई हैव एडेड अ क्लोजिंग ऑन द स्टैक. अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? डन, यू आर ऑलरेडी डन. अगर लास्ट में कंक्लूजन बोलता हूँ मैं, अगर आपका स्टैक इज एम्प्टी है देन वैलिड, इनवैलिड. दैट्स इट. यही बताना है आपको. क्या करना पड़ेगा आपको? पुश कर लिया आपने अभी. फॉर एवरी ओपनिंग ब्रेसेस यू एडेड अ क्लोजिंग ब्रेसेस. तो अभी आपको क्या करना है? फिर से पॉप करना है. पॉप क्या किस बेसिस पे पॉप करोगे आप? किस बेसिस पर पॉप करोगे आप? So on what basis you are going to pop? क्या पॉप करोगे? पॉप ही करना है आपको. कब पॉप करना है दैट इज द क्वेश्चन. और लास्ट में आपको, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है देन इट इज वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड. यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, बिकॉज दिस इज समथिंग यू विल बी फेसिंग. हाँ, उसमें सारे क्लोजिंग वाले हैं. कब पॉप कैसे करोगे आप? किसके साथ कंपेयर करोगे आप? हाँ, तो अभी क्या करोगे आप बोल रहे हो कि एरे के साथ कन्वर्ट करोगे आप. अभी आप किसको पॉप करोगे आप? अगर उसका क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता है तो क्लोजिंग ब्रेसेस या इसके लिए पॉप करो ना. सेम ही रहेगा. क्लोजिंग के बेसिस पे या किसके बेसिस पे पॉप करोगे आप?
Okay, let's check this. अब मैं इसको कुछ बोल देता हूँ, ये वाला, ये वैलिड है इनवैलिड है? ये इनवैलिड है, राइट? क्यों? हाँ, आधी स्ट्रिंग ले रहा है, करेक्ट। क्लोज का, करेक्ट। कॉपी कर रहे हैं ना हम क्लोजिंग के लिए, यहाँ पर क्लोजिंग और लिखना पड़ेगा। अगर केस क्लोजिंग है, मैच कैसे, कंपेयर कैसे करोगे आप? आपको मैच क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ। हम्म हम्म हाँ हाँ। अभी मुझे बताओ, वैलिड है नहीं, कैसे चेक करोगे आप? कैसे चेक करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे आप? थिंक ऑफ दिस, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। ओके, और अभी व्हाट अबाउट दिस? चेक कर लेना, गो थ्रू दिस क्वेश्चन, थोड़ा हैंड्स ऑन कर लेना, जस्ट हैव लिटिल बिट कंपैरिजन करना है आपको। हाँ, स्टार्टिंग वाले ओपनिंग, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आपको पुश करना और पॉप करना है, दैट्स इट। क्लोजिंग, इसके लिए क्लोजिंग हमने वही किया था, पुश। इसके लिए पुश किया था ये वाला, इसके लिए पुश किया था ये वाला, इसके लिए पुश किया था ये वाला। हाँ, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग यहाँ पर स्विच लेंगे। हम्म ओके, तो क्लोजिंग मिला तो उसका पॉप करेंगे, ऐसे बोल रहे हो आप, ये वाला। Invalid. Let me check this. Valid. You can take some other example also. Is this? Is this valid? Yes. मतलब वैलिड का डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं, इज दिस वैलिड? दिस इज नॉट वैलिड, राइट? लेकिन वैलिड आ रहा है, क्यों? हाँ, ये गलत है, ये गलत है।
लॉजिक ये आपने क्या किया, इक्वालिटी चेक कर रहे हो आप. करेक्ट, करेक्ट. थिंक ऑफ दिस. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपको. आपको स्टैक कोई पूछने नहीं वाला. So they will ask you the application of this. This is one of the application. Okay. Next, we talked about the list implementations. Using list, we know that we can store duplicate elements. We can store duplicate elements. Now my requirement is I want to store only unique elements. I want to store unique elements. So what do we have? If I want to store unique elements, so how do we store that? I want to store unique elements. I do not want duplicates. आपको पता होगा, we have seen using set. So we have a set. Set is an interface that is implemented by what is that? So we have the top class. What is that? Iterable. There is an interface that is extended by collection. Collection is also interface. Collection is extended by list, set, and queue. Now what is the implementation of list? We have array list, linked list, vector, and vector is extended by stack. अभी तक बस 4 ही क्लास देखे हमने. This is what we have covered. इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो. अभी आपका रिक्वायरमेंट क्या है? यू वांट टू स्टोर यूनिक. तो इसके लिए आपके पास है सेट. So iterable collection set, and set is extended by, implemented by has set. Has set. Has set is extended by linked has set. The class. And then we know then we have different hierarchy. What is that? So set is extended by sorted set. Perfect. Sorted set is extended by navigable set. And it is extended, it is implemented by tree set. The class. Think of this. Has set, linked has set, and tree set. These are the concrete classes. These are the concrete classes. And for the queue, we know what are the implementations. We have priority queue. This is an implementation class. Once again, see for the list, we know that I am just talking about the set. Set hierarchy. Once again, see. Set is extended by collection is extended by set. Collection extends iterable, not iterator. Iterable collection set, and set is extended implemented by has set. It is a class. Has set is extended by linked set is extended by sorted set, and sorted set is extended by navigable set. Navigable set is implemented by
tree set. I hope you have practiced this hierarchy. Hash set, linked hash set and tree set. These are the implementation classes. बाकी सारी क्या है आपकी interfaces. iterable, collection, set, sorted set, navigable set. ये सारी आपकी interfaces है. और आपका hash set, linked hash set and tree set. अभी इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज दीज टू स्टोर यूनिक एलिमेंट्स. किस चीज के लिए? क्या कर सकते हो? यूनिक एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो यूजिंग दिस. सिंपल. Now if I want to store unique elements, what is the choice? I have three options: hash set, linked hash set and tree set. ये hierarchy याद रखना. This is something you will be needing. Okay. Now, if you want to store unique elements, we have three options: hash set, linked hash set and tree set. अभी तीनों में से कौन सा कब यूज करना है? Now think of this two words. Uniqueness सबका है compulsory. If you want to store unique elements and you are not worried about the insertion order, then you go with the hash set. You want to store unique elements but you want to have insertion order. You want to have unique elements but you want sorting of elements also. आपको क्या चाहिए? Elements sorted भी चाहिए और unique भी चाहिए. You go with the this one. Null कितना insert कर सकते हो? यहाँ पर only once. यहाँ पर भी null only once. और यहाँ पर null एक बार भी स्टोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि कंपैरिजन होगा. सॉर्टिंग के लिए क्या होगा? कंपैरिजन होगा. और नल के साथ कोई भी ऑपरेशन क्या देता है आपको? नल पॉइंटर. तो नल पॉइंटर आ जाएगा, इसलिए आपको नल एक बार भी ऑप्शन नहीं है. और दूसरी एक और बात है, सॉर्टिंग के लिए आपको पता होगा कि डेटा कौन सा होना चाहिए? परफेक्ट. होमोजेनियस, यूनिक, सॉर्टिंग ऑर्डर, नल. यूनिक, इंसर्शन ऑर्डर, नल ओनली वंस. एंड यहाँ पर आप दोनों स्टोर कर सकते हो, होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजेनियस. यहाँ पर भी होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजेनियस. Using hash set, you can store homogeneous as well as heterogeneous data. Data will be unique. There will be no insertion order. You can insert null only once. Linked hash set, exactly same as hash set, only changes insertion order. Unique यहाँ पर भी रहेगा, null only once. Homogeneous as well as heterogeneous data. यहाँ पर homogeneous data ही रहेगा compulsory, because data sort होने वाला, तो sorting के लिए data same type का होना ज़रूरी है. यहाँ पर uniqueness यहाँ पर भी रहेगा, और यहाँ पर डेटा कैसे रहेगा? सॉर्टेड. और नल यहाँ पर एक बार भी आपका अलाउड नहीं है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिकनेस. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स. किस बारे में बात हो रही है? यूनिकनेस. तो यूनिकनेस कैसा चेक होता होगा? पहले एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ऐड होगा नहीं. एलिमेंट अगर कलेक्शन में है तो एलिमेंट फिर से ऐड होगा नहीं. तो यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इज चेक्ड यूजिंग अ मैकेनिज्म. क्या मैकेनिज्म है? तो ये होता है यूजिंग इक्वल्स एंड हैश कोड. यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इज चेक्ड यूजिंग equals and hash code in case of hash set. In case of linked hash set, same यहाँ पर भी uniqueness of element is checked using equals and hash code. Hash set और linked hash set में elements का uniqueness किसका यूज करके मेंटेन हो रहा है? using equals and hash code. और ध्यान देना यहाँ पर
यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट इज नॉट चेक्ड यूजिंग इक्वल्स एंड हैश कोड। तो यहाँ पर क्या यूज होता है? कंपेरेबल और कंपैरेटर का इंटरनली यूज होता है एंड देन बेस्ड ऑन दैट इट चेक्स द यूनिकनेस। इसको पूरा देख लो, सारा इंटरव्यू क्वेश्चंस आपका इधर ही है। हैश सेट इंटरनली यूज करता है हैश मैप। क्या यूज करता है इंटरनली? हो हैश मैप। लिंक्ड हैश सेट इंटरनली यूज करता है लिंक्ड हैश मैप, और इंटरनली ट्री सेट यूज करता है ट्री मैप प्लस। दैट्स इट। ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। मोस्ट ऑफ द, मतलब जो बिगिनर या अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस बंदे के लिए चाहिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस। Okay, let me write this. Let's talk about hash set. What is hash set? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, what is hash set? It is a concrete class which implements set. Using hash set, we can store multiple unique values which can be homogeneous as well as heterogeneous. Now, how many null values you can store? We can store only one null value. और क्या बोला था मैंने? इंसर्शन ऑर्डर of the elements won't be maintained. Insertion order of the elements won't be maintained. हाँ, internally it uses hash map. It uses hash map internally. मतलब आप हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इंटरनली किसका ऑब्जेक्ट बनने वाला है? हैश मैप का। एंड इट मेंटेन्स uniqueness of elements based on equals and hash code method. Equals and hash code method. ध्यान रखना। और कुछ क्या बोला था मैंने? All the points are covered? Yes. Okay. Now exactly same things linked hash set. It is a concrete class which extends hash set and implements set also. Using linked hash set, what we can do? We can store multiple unique values. This can be homogeneous as well as heterogeneous. We can store only one null value. Insertion of the elements will be maintained. That's it. बाकी सब it uses बाकी सब
same. Now what do you mean by tree set? It is a concrete class which implements uh-huh, which implements navigable set. Using tree set, what we can do? We can store multiple unique values which can be only homogeneous. We cannot store even one null value, otherwise आपको मिलेगा null pointer exception. Insertion order, no. Sorting order of elements will be maintained. और tree set, it uses tree map internally. क्या यूज होता है? Tree map, and it maintains the uniqueness of elements based on the. ध्यान रखना, बहुत सारे इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. कंपेरेबल और कंपैरेटर, दोनों में से कोई एक चल जाएगा. That's it. It covers most of your interview questions. Let's see the so the all list implementations. Then we have set. Then we have now I am going to use set equal to new has set. Can I do this? Parent class reference, child class object, can we do this? कर सकते हैं. क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम? Add a single element, set dot add number ट्राई कर रहा हूँ मैं, डुप्लीकेट, ट्रू, डिफरेंट टाइप का डेटा ऐड कर रहा हूँ मैं, यस, सेट डॉट ऐड, और मैं नल इंसर्ट करता हूँ. सॉरी, हाँ, एक ही बार होगा. अब मैंने ये सारा ऐड तो किया, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ. आई विल जस्ट प्रिंट दिस. एरर नहीं है, रन टाइम अगर प्रेजेंट है ऑलरेडी तो ऐड नहीं होगा. देखो यहाँ पर नल कितने बार इंसर्ट हुआ? एक बार. 100 कितने बार? एक बार. स्ट्रिंग वैल्यू एक बार. ट्रू 2 बार इंसर्ट किया था लेकिन एक ही बार. और यहाँ पर एक और चीज़ देखो आप, होमोजीनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस डेटा बट यूनिक. दूसरा, आप इंसर्शन ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन्ड नहीं है, यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं है. राइट. अब मैं सिंपल सा चेंज करता हूँ इसको. यहाँ पर बस मैं इंस्टेड ऑफ हैश सेट आई एम गोइंग टू यूज linked hash set. Same properties, only one thing, you can now predict the output. It will be string value 100 true null. String value 100 true and null. So you are able to predict the insertion. Now you are able to see the insertion order. तो और क्या ऑपरेशंस कर सकते हो आप? कोई भी एक कलेक्शन के ऊपर एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना, मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना, और क्या कर सकते हो आप?
मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो आप. सेट set2 इक्वल टू न्यू हैज सेट. और क्या कर सकते हो, set2 डॉट ऐड ऑल आपके पास है, सेट डाल सकते हो आप. मतलब एक उसकी वैल्यूज यहाँ पर आपने ऐड करी और यहाँ पर आपने set2 प्रिंट कर दिया. आप सिंगल वैल्यू ऐड कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू. सिमिलरली लिंक्ड हैज सेट में एग्जैक्टली सेम रहने वाला है. ठीक है, एज इट इज आपने दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया. नाउ देयर इज वन मोर थिंग. मैंने एलिमेंट तो ऐड किया, मुझे अभी एलिमेंट्स रिमूव करना है. आई वांट टू रिमूव द एलिमेंट्स. सो बिफोर रिमूवल मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ बिफोर रिमूवल. तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ रिमूव करने से पहले सेट. अब मुझे रिमूव करना है एलिमेंट्स. सो रिमूव के लिए आपके पास रिमूव ऑल एंड रिटेन. अगर मुझे सारा का सारा डिलीट करना है तो मेरे पास है क्लियर. तो क्लियर आपको पता होगा, आफ्टर रिमूवल I will just print that set. इसे होगा क्या, what will happen because of this? clear मतलब everything will be removed. clear का मतलब क्या होता है, remove everything. remove all multiple values आप remove कर सकते हो. remove single element, remove all के बाद देखो यहाँ पर everything is removed. बाकी जैसे हमने लिंक्ड हैज सेट में कर रहे हैं सेम चीज आप लिंक्ड हैज सेट में भी कर सकते हो. अब मुझे क्या करना है, रिमूव इफ भी कर सकते हो आप, रिमूव ऑल भी कर सकते हो. रिमूव यहाँ पर मुझे रिमूव करना है नल, तो नल भी रिमूव हो जाएगा. ओनली क्या डिलीट हो रहा है, नल. जैसे हमने लिंक लिस्ट में किया था एक रिमूवल लिस्ट बना के, दैट आल्सो यू कैन डू. See here, before removal and we have after removal. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक और इंटरव्यू क्वेश्चन होता है बहुत बढ़िया, और आप सीधा सीधा बोल देते हो गेट. अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट गेट करना है, एक सिंगल एलिमेंट, गेट अ सिंगल एलिमेंट. और आप जान के आप क्या करोगे, यूजली आप करते हो सेट डॉट गेट, लेकिन गेट मेथड ही नहीं है इधर. यस मुझे सिंगल एलिमेंट रीड करना है कोई. आई वॉन्ट टू रीड वन ऑफ द एलिमेंट. रीड करना है, कंटेंट्स नहीं बोल रहा. सर्च कंटेंट्स क्या करता है, सर्च, इट विल सर्च द एलिमेंट. मुझे एक सिंगल एलिमेंट फेच करना है, जैसे हम इंडेक्स बेस पर एलिमेंट एक्सेस करते थे. सो यहाँ पर एक और चीज याद रखना है आपको, we can't access index concept in, we can't access elements using index as there is no index concept here in has set. तो सिंगल एलिमेंट आप गेट नहीं कर सकते. फिर कैसे करोगे आप, गेट है नहीं आपके पास. ऐड है, ऐड ऑल, रिमूव कंटेंट्स ऑल, रिमूव ऑल, साइज, टू एरे. तो मुझे चेक करना है, गेट मेथड नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव द गेट मेथड. अब मुझे सर्च करना है कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में नल है कि नहीं. तो मेरे पास इज नल प्रेजेंट, तो आपके पास चेक कर सकते हो सेट डॉट कंटेंट्स. अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स.
इज नल प्रेजेंट, यस ट्रू। अब मुझे सिंगल एलिमेंट गेट नहीं कर सकता हूँ, वंस अगेन लेट मी टेल यू, वी कैन नॉट गेट अ सिंगल एलिमेंट। क्यों नहीं कर सकते एक्सेस? क्योंकि इंडेक्स कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। गेटिंग द आइडिया? इंडेक्स कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। तो यहां पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? एरे यूज नहीं होता, लिंक लिस्ट यूज नहीं होता, तो यहां पर यूज होता है, इट यूजेस हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। इट यूजेस हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर। और ट्री सेट यूज करता है, इट यूजेस रेड ब्लैक ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री में डेटा स्टोर होता है आपका, नॉट इन द लिस्ट, नॉट इन द एरे, इट मेंटेन्स अ ट्री। एक एलिमेंट यहाँ पर, एक एलिमेंट यहाँ पर, ऐसे। सो जैसे हम ट्री हैश मैप देखेंगे, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन कि हैश मैप कैसे काम करता है, हाउ लिंक्ड हैश मैप वर्क्स, हाउ ट्री मैप वर्क्स। आई विल लिटिल बिट गिव यू, बिकॉज इंटरनली ये ट्री सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, दे आर यूजिंग हैश मैप। सो इफ आई से न्यू हैश सेट किया आपने यहाँ पर, राइट, तो इंटरनली क्या कर रहे हो? इंटरनली वो इंटरनली यूज कर रहे हैं हैश मैप। और हैश मैप क्या होता है? हैश मैप इज अ की वैल्यू पेयर, आपको दिखाई देगा, वी विल टॉक अबाउट दैट हैश मैप एंड एवरीथिंग, दैट इज नेक्स्ट क्लास। ठीक, तो सिंगल एलिमेंट गेट नहीं कर सकते, सारे एलिमेंट्स गेट करना तो आपके पास इटरेटर है, यू वांट टू रीड ऑल द एलिमेंट्स, हाउ डू वी रीड? रीड ऑल एलिमेंट्स, आप कैसे कर सकते हो? आपके पास ऑप्शन है सेट डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर सकते हो आप। एक ऑप्शन है रीड ऑल एलिमेंट्स यूजिंग, कैसे कर सकते हो आप? सेट डॉट इटरेटर, ये मिल गया आपका इटरेटर, और इटरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? वाइल iterator dot has next, and you do get the element iterator dot next. enhance for loop भी आपके पास, you can use enhance for loop also, same चीज linked hash set के लिए भी, सेम चीज ट्री सेट के लिए भी, तीनों के लिए सेम तरीका है। तीनों में गेट मेथड नहीं है, एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप ऐसे करोगे। सिंपल। clear? How do we access the elements? Same cheese, exactly same cheese in the linked hash set also. ठीक, now I am going to give you one more scenario. So I am going to create employee class, and I am going to specify, I don't need this stuff, ये नहीं, I don't need to touch this class, I just go to the I can change this। कहाँ यूज हो रहा है ये? डेमो सॉर्टिंग, let me create a class that self,
employee. This is the class I'm creating. Int ID, private string, name, private int salary. These are the fields we have. Now I can use getter setters, everything I will get. I talked about this, right? क्या करता है @ data? हाँ, getter setters. ये आपको बताया था ये वाला चीज ऑनलाइन. डिड आई टेल यू अबाउट दिस? लॉम्बॉक बताया था मैंने, राइट? अदीबा, डिड आई टेल अबाउट दिस? अवंती, इसके बारे में मैंने बताया था क्या आपको? यस रोहन, मैंने बताया था कि इसके बारे में लॉम्बॉक. चलो सिंपल सा आइडिया बता दो. तो वहां पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है लॉम्बॉक, जो आपका काम हल्का कर देती है. ललित म्यूट कर दो. देखो अब मुझे क्या चाहिए इस क्लास के लिए, मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्टर चाहिए, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. तो मैंने सारा यहाँ पर जनरेट कर लिया. दूसरा है जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ये भी मिल गया. मुझे गेटर सेटर चाहिए, तो गेटर सेटर्स मैंने ऐसे जनरेट कर दिया. टू स्ट्रिंग मेथड चाहिए, तो टू स्ट्रिंग मेथड भी मैंने ओवरराइड कर लिया. सो आई विल ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड आल्सो, ये ऐसे कर लिया. ठीक है, कहाँ पर यूज हो रहा है? तो ये मैं खुद जनरेट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट जनरेटिंग द गेटर सेटर, टू स्ट्रिंग, एवरीथिंग आई हैव जनरेटेड. तो ये करने के लिए आपके पास एक ऑलरेडी लाइब्रेरी जिसका नाम है लॉम्बॉक. अभी अगर मेरे पास इस क्लास के अंदर 1000 फील्ड्स है, तो 1000 फील्ड के लिए गेटर सेटर जनरेट करना, फिर कंस्ट्रक्टर जनरेट करना, टू स्ट्रिंग जनरेट करना, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा. मतलब काम ईजी है, लेकिन लेंथ ऑफ द कोड विल इंक्रीज. 1000 फील्ड है तो 1000 फील्ड का दो गेटर सेटर, उसका 4-5 लाइन, ऐसे कितना लाइन्स हो गया? 5000 तो लाइन तो इसका हो गया. कंस्ट्रक्टर का कुछ लाइन्स, टू स्ट्रिंग का कुछ लाइन्स, बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ रहा है. अगर मेरे एप्लीकेशन में ऐसे 1000 क्लास है, तो 1000 क्लास के लिए 1000 बार मुझे सेम चीज़ करना पड़ रहा है. सबके लिए गेटर सेटर, सबके लिए कंस्ट्रक्टर, सबके लिए जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, सबके लिए करना पड़ रहा है मुझे. सो व्हाट इज द ऑप्शन? तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है लॉम्बॉक. तो ये लाइब्रेरी आपको मिलेगी एम्बियन रिपोजिटरी. यहाँ पर सर्च करो लॉम्बॉक. मैंने बताया था, आई थिंक इफ द जार इज इन द एप्लीकेशन, इसका मतलब है मैंने आपको ये बताया था. लॉम्बॉक, यहाँ पर जाओ, जस्ट क्लिक ऑन दिस लेटेस्ट वर्जन और जस्ट क्लिक ऑन जार. इससे आपको जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, गो टू प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, गो टू लाइब्रेरीज, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड किया, मतलब मैंने आपको बताया होगा इसके बारे में. जस्ट क्लिक ऑन प्लस जावा, और जो भी लाइब्रेरी थी उसको बस ऐड करो. इससे क्या होगा, उन्होंने जो कोड लिखा है ऑलरेडी उसको हम बस यूज कर रहे हैं. जस्ट क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके. अभी आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आपको क्या लिखना है, बस गेटर सेटर चाहिए आपको, बस लिखो. आप गेटर सेटर चाहिए तो बस लिखो
सेटर. आपको ऑल आवर्स कंस्ट्रक्टर चाहिए, बोलो ऑल आवर्स. नो आवर्स कंस्ट्रक्टर चाहिए, नो आवर्स कंस्ट्रक्टर. टू स्ट्रिंग चाहिए, ऑल सेट. ये ऑन द फ्लाई सब कुछ जनरेट करके देने वाला है. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. Instead of you now writing getter setters constructor, now this will be generated by Lombok. You want to test? Let's test that. I will create some list of employees. Employee, new employee. और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है. So I will directly write the constructor. Let's say 1. ये कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है? ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लेके आया मुझे. पांच एम्प्लॉइज है. So I will create a set, and there I am going to get a set of employee set, new has set, and employee set dot add employee 1, 2, 3, 4 and 5. 5 elements created, उनको set में add किया मैंने. Now I am just going to print this employee set dot for each system dot out dot println. My first question, how many elements will be added? एक, सारे, ऑनलाइन. मैंने क्या बोला था? It will add 5 elements. It will add 5 elements. Why? Because it is going to check employee 1, it is going to compare with employee 2, employee 2 is going to compare with employee 3, employee 4 and employee 5. Now what are employee 1, 2, 3, 4, 5? These are references. These are references which are pointing to 5 different objects. 5 references pointing to 5 different objects. तो सबका hash code, it is going to be different. It is going to be different. तो equals and hash code method अभी present कहाँ पर है? उसके object class के अंदर. So employee objects are now compared based on their equals and hash code. तो सबका hash code different है? Yes. तो अभी आपको क्या करना है? If you want, they should be compared based on equals and hash code. So I am going to compare equals and hash code based on parameter employee dot. Okay, that's fine. Equals and hash code में generate कर रहा हूँ. So what I am going to do, this is not required. I am going to write the code. अभी employee class extends which class? Employee class extends which other class?
ऑब्जेक्ट क्लास, कौन सा क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। इस ओबीजे को मैं कन्वर्ट करता हूँ, ओबीजे आई एम गोइंग टू टाइप कास्ट दिस, सो आई विल से एम्प्लॉय emp इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ओबीजे। तो मैं इसको टाइप कास्ट कर दिया। अभी वैल्यू पास करेगा, अभी एम्प्लॉय वन डॉट इक्वल्स emp1 डॉट इक्वल्स emp2, with दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर होने लिए, कौन कौन सा? एम्प्लॉय वन एंड एम्प्लॉय टू। सो एम्प्लॉय वन कॉल्स इक्वल्स मेथड ऑन एम्प्लॉय टू। तो यहाँ पर दिस कौन हुआ? एम्प्लॉय वन विल बी द दिस। तो मैं उसका आईडी चेक करूंगा, और किसके साथ? एम्प्लॉय टू के साथ। मैं उनकी इक्वलिटी किस बेसिस पे चेक कर रहा हूँ? इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू जीरो नहीं, इसको इक्वल लिखना है मुझे। क्या लिखना है? इक्वल टू जीरो करो, ऐसे करो, इक्वल टू। अगर उनका एम्प्लॉय आईडी दोनों का सेम है, देन दे मीन्स दे आर इक्वल। क्या लिखा है मैंने? सिंपल सा लॉजिक लिखा है, एम्प्लॉय वन डॉट इक्वल्स एम्प्लॉय टू। तो यहाँ पर दिस बना एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू बना आपका एम्प्लॉय। दोनों का अगर आईडी इक्वल है तो दैट मीन्स दैट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज डुप्लीकेट। और यहाँ पर मैं हैश कोड मेथड भी जनरेट करूंगा। तो हैश कोड मेथड किस बेसिस पे जनरेट करूंगा मैं? उनकी ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश कोड, और हैश किस बेसिस पर? उसकी आईडी के बेसिस पर, एम्प्लॉय की आईडी के बेसिस पर मैं क्या जनरेट करूंगा? हैश कोड। अगर उसने एम्प्लॉय वन डॉट एम्प्लॉय टू के जगह पर नल पास कर दिया तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। आपको क्या मिलेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। अगर मैं यहां पर नल दे दूं, अभी क्या होगा? विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहां पर नल ऐड हो रहा है, तो यहां पर आप ऐड कर सकते हो। आई विल जस्ट जनरेट, अगर ये ओबीजे नल है तो रिटर्न क्या करोगे आप? इफ ओबीजे इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न क्या करोगे आप? फॉल्स, राइट। अगर इफ दिस इक्वल टू ओबीजे है तो वो रिटर्न क्या करोगे आप? ट्रू। दैट्स इट। चलो चला, तो अभी मैंने इक्वल्स और हैश कोड उनका सेम कर दिया। मैंने इक्वालिटी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट किस बेसिस पे चेक हो गया? अभी बेस्ड ऑन देयर आईडी। तो यहाँ पर अभी कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे? ओनली वन। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल बी एडेड नाउ? ओनली वन। समझा क्या किया मैंने? तो मैंने अभी कोई भी दो एम्प्लॉय इक्वल है ही नहीं, किस बेसिस पे चेक होगा? नॉट बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल रेफरेंस, दे विल बी चेक बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्ट। They will be checked based on their ID. समझ में आ रहा है? How many objects will be added? Okay. Now let's talk about this. I will talk about tree set. Now instead of linked hash set, I will say tree set. And first thing, you'll get the exception. Elements are not of same type. So you'll get class cast exception. String cannot be cast to integer, or integer cannot be cast to string. क्लास का एक्सेप्शन। तो आपको कौन सा टाइप का डेटा चाहिए? सेम टाइप का, आइदर स्ट्रिंग या आइदर इंटीजर्स। तो पहला तो ये आपको हटाना पड़ेगा। तो सेट डॉट ऐड, लेट्स से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रोहन,
we have, let's say, Swapnil, then we have Lalit. Tree set hai. Now I'm just going to run this. What is going to happen? It is going to sort the elements based on their alphabetical order. सिंपल. डुप्लीकेट आप नल ट्राई करो ऐड करने का. नल एक बार भी नहीं चलेगा. नल एक बार भी नहीं चलेगा. एक बार भी नल ऐड करते हो, यू विल गेट अ नॉट कंपाइल टाइम, रन टाइम. आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा. क्या आ रहा है? नल पॉइंटर. तो एक बार भी नल अलाउड नहीं है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है. डुप्लीकेट ट्राई करो आप. 2 बार मैंने अदनान ऐड किया, 2 बार स्वप्निल, 2 बार ललित. होगा क्या? एक ही बार होगा ऐड. यूनिक एलिमेंट्स एंड दे विल बी सॉर्टेड. Simple. Similarly, you can do for the integers also. I will add the elements, integers. I have 10, let's say 97 twice. It will be, what will the output? 10, 56, 67, 88 and 97. Simple. Now, instead of hash set, I will use now tree set. Now, how many elements will be added? Hmm? 1, 2, 3, 4. You will not be able to add a single element also. You will get a runtime exception called as class crust. अभी एम्प्लॉई यूनिक है ही नहीं, उसको पता ही नहीं किस बेसिस पे यूनिक. क्या बोलना उसने? क्लास कास्ट एक्सेप्शन. एम्प्लॉयज कैन नॉट बी कास्ट टू कंपेरेबल. इसका मतलब क्या हुआ? ट्री सेट is trying to find the uniqueness of elements, but he is not able to do that because he is not using equals and hash code. Employee elements are checked for the uniqueness, और उनको किस बेसिस पर सॉर्ट करना है उसको पता है क्या एम्प्लॉय को? वेदर यू वांट टू सॉर्ट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन आईडी, सैलरी, नेम, व्हाट बेसिस यू वांट टू सॉर्ट, उसको पता नहीं हो तो उसको तो सपना नहीं आएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू? वन ऑप्शन जैसे हमने देखा था, इसको इंप्लीमेंट करो. इंप्लीमेंट्स कंपैरेबल और ओवरराइड करो कंपेयर टू मेथड. और यहाँ पर लॉजिक लिखो कि एम्प्लॉयज शुड बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन देयर आईडी. दैट्स इट. और आपका काम हो गया. दैट्स इट. Now, how many elements will be added? Only one, because their uniqueness will be checked on this ID, and only one element will be added. See here. अगर मैं इसको change करता हूँ, how many elements will be added now? And what is the order? 1, 4, 11, 23, 101. तो यहाँ पर एम्प्लॉइज का यूनिकनेस किस बेसिस पर चेक हुआ? आईडी के बेसिस पर. वो हमने क्या लॉजिक लिखा उसके लिए? उसको बनाया हमने इम्प्लीमेंट्स कंपैरेबल. अगर आपको ये लॉजिक नहीं लिखना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है एक. क्या ऑप्शन है आपके पास?
कंपैरेबल। तो आप क्या करो, एक कंपैरेबल लिखो। कंपैरेबल कैसे लिख सकते हो आप? कंपैरेबल, यू आर गोइंग टू राइट अ कंपैरेबल टू कंपेयर एम्प्लॉइज। और अब उसको क्या लिखना होता है आपको? दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, EMP1 एंड EMP1 एंड EMP2। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करना है? बेस्ड ऑन देयर ID, गेट ID माइनस EMP डॉट गेट ID, EMP2 डॉट कंपेरेबल नहीं, सॉरी माय बैड। व्हाट इज दैट? कंपैरेटर। कहाँ पर हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। कंपैरेबल नहीं यूज करना, यहाँ पर यूज करना आपको कंपैरेटर। कंपैरेटर में कौन सी मेथड है? कंपेयर विच एक्सेप्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2। अब इन दोनों का बेसिस पे क्या होगा, किस बेसिस पे दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स कंपेयर होंगे? बेस्ड ऑन देयर ID। और आपको क्या करना है, बस ये कंपैरेटर किसको देना है? ट्री सेट को। एंड योर जॉब इज डन। आप कंपैरेटर डायरेक्टली ये सब कुछ इधर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो सीधा सीधा, सिंपल। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप उसके लिए? ये भी लिख सकते हो आप, सिंपल। तो क्या करना पड़ता है? कंपैरेबल ट्री सेट को क्या करना है, जब भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स ऐड करना है, द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ऑफ टाइप कंपैरेबल, या नहीं है तो आपको ट्री सेट को इनपुट देना पड़ता है कंपैरेटर, और जिसमें लॉजिक लिखोगे किस बेसिस पर एम्प्लॉय या कोई भी ऑब्जेक्ट का यूनिकनेस चेक होना चाहिए, और सॉर्ट किस बेसिस पे हो जाएगा। यहाँ पर सॉर्टिंग किस बेसिस पे होगी? ID के बेसिस पे, और यूनिकनेस भी किस बेसिस पे चेक होगा? ID के बेसिस पर। सिंपल। कंपैरेबल कंपैरेटर वी हैव सीन इन डिटेल, कैसे बनाते हैं कंपैरेटर, कैसे कंपैरेबल बनाते हैं, वी नो दैट। जैसे सॉर्टिंग के लिए किया था, एग्जैक्टली सेम जॉब यहाँ पर भी कर रहे हैं। कंपैरेटर लिखो एंड दैट गिव दैट कंपैरेटर एज अ इनपुट योर ट्री सेट कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट। जैसे हमने कंपैरेटर लिखा है सॉर्टिंग के टाइम, सेम चीज यहाँ पर भी करना है आपको, नथिंग चेंजेस। इजी? Okay, so I want you to practice this hash set, linked hash set, tree set. Try to add elements, single element, add multiple elements, remove elements, read elements, add custom objects also. Try practicing this. ठीक है? And next